Vision. So students, we have completed some portion in the chapter 4, absorption of water and minerals by roots, and this syllabus already I explained you properly. Yesterday we have discussed importance of water, importance of minerals, and processes involved in absorption of water. Here we have studied the process of imbibition, then the examples of imbibition, and then the next we have studied diffusion, the procedure as well as the experiment based on the diffusion, then the importance of diffusion to the plants as well as animals both, and the types of membranes. So four types of membranes you have studied: permeable, semi permeable, impermeable, and selectively permeable. The reason behind these names as well as the function of all these membranes we have studied. Now today we will start with the osmosis process. Okay, so what is osmosis? So children, as you have studied that in the diffusion is the movement of molecules from high concentration to the low concentration. And one thing you will see here, that here these two solutions here, or the two substances, are not separated by any membrane. Okay, so this is membrane free system. As well as both the solute and solvent, they move in the process of diffusion. But what happens in the osmosis? Osmosis is actually the movement of water molecule across a semi permeable membrane. As I explained you the types of membrane, so you can see here, this is the membrane here. This membrane is the semi permeable membrane. So here the movement of the solvent molecules, this is water here, and it is taking place across the semi permeable membrane from the region of its higher concentration to the region of लोअर कंसंट्रेशन. मतलब जहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ जो है वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मूव करता है. बट यहाँ पर एक चीज़ और आपको ये देखना है कि यहाँ पर ओनली सॉल्वेंट मूव्स. सो दिस इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के अंदर जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं, बट ऑस्मोसिस के अंदर केवल सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. So this is diffusion. We will study the that experiments also on the diffusion. I will explain you. Before that, some that differences are there, and very important question which is frequently asked in the exams also. So you will see the differences, that diffusion and osmosis. The first column is for the osmosis and the second is the diffusion. So osmosis involves the movement of the solvent molecule, as I said, while the diffusion involves the movement of the solute molecule only. And the molecules, they move from lower concentration of solute to higher concentration of solute. यहाँ पे समझना है. ओके, सो यहाँ पर ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, सोल्यूट जो है वो उसके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूव होता है. जबकि डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में बताया, सॉल्वेंट की नहीं. ठीक है, जब हम सोल्यूट की बात करेंगे तो सोल्यूट क्या सब्सटेंस होता है जो हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर. ओके, तो जो सोल्यूट हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, वो उसके रेफरेंस में जब हम देखेंगे तो ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से ज़्यादा की तरफ. इसको आप रिवर्स मैनर में कैसे या अदर वे में कैसे समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव करते हैं, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ हायर सॉल्वेंट टू द लोअर रीजन ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, और डिफ्यूजन के अंदर जो है मॉलिक्यूल जो है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ मूव करते हैं. अच्छा, ऑस्मोसिस जो है इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, सो टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. पर यहाँ पर जो है इसमें जो डिफ्यूजन है इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सम एग्जांपल्स एज आई डिस्कस्ड विद यू ऑलरेडी. इन द केस ऑफ डिफ्यूजन, दैट spreading of ink when a drop of its put in the glass of water. And osmosis also we can demonstrate it by putting the potato slides in the concentrated solution. So it will cause a shrinkage of the potato slice when it is placed in the
sucrose solution. So this is the example of the osmosis, means demonstration of osmosis. आप कैसे पता लगा सकते हो कि osmosis हो रहा है? उसका सिंपल सा तरीका है कि पोटैटो की स्ट्रिप्स आप जो है इक्वल साइज की बनाएं, and then after you keep them in the concentrated sugar solution, leave it for few minutes, at least 20 to 25 minutes. You will see that size of the potato chips or this potato slice, it will be reduced. क्यों हो जाएगी reduce? उसका रीज़न ये है कि उसमें ऑस्मोसिस होगा, जो वाटर कंटेंट है पोटैटो सेल का, इट मूव्स आउट इन द शुगर सोल्यूशन एज पर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा. ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. नाउ नेक्स्ट वी विल सी the demonstration of diffusion. This is very important. As you know that osmosis is a special kind of diffusion whereby water molecules move through a semi-permeable membrane from the region of its higher concentration to the region of lower concentration, and the movement of water molecules, it continues until the concentration becomes equal on two sides of the semi permeable membrane. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको डिफ्यूजन में ना इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट बताया था कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं इंक के या पोटेशियम परमैंगनेट के कब तक मूव करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, जब तक कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते. तो सेम वे ऑस्मोसिस के अंदर भी जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो कब तक चलता रहता है? इट कंटिन्यूज until the concentration becomes equal on both the sides of the semi permeable membrane. जो semi permeable membrane हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उससे दो solutions जो हैं डिवाइडेड हैं, सेपरेटेड हैं, उन दोनों में जब तक कि इक्वल अमाउंट नहीं हो जाए सॉल्वेंट का, तब तक जो है सॉल्वेंट का मूवमेंट कंटिन्यू रहता है. तो दैट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इटसेल्फ. ओके, सो नाउ वी विल कम टू द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस. तो कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे ऑस्मोसिस का? दिस विल बी शोन टू यू इन द लैब ऑल्सो, and how it is done, that I will explain you. So here what we are using, here we are using a beaker containing distilled water in it, and 20% sugar solution is there in the thistle funnel. So this is thistle funnel, you will see here, and the sugar solution which is filled, it is being concentrated. So 20% हम यहाँ पर sugar solution ले रहे हैं, concentrated sugar solution. Now here that mouth of the thistle funnel is covered with the semi permeable membrane. You can see here, this is the mouth of the semi permeable membrane which is covered, tied properly with the cellophane paper. And you know that examples of semi permeable membranes, I explained you that cellophane paper as well as the goat's bladder is there. These are used as the semi-permeable membrane. So that mouth of the funnel is tied with the semi-permeable membrane. Here we are using the cellophane paper. So जो थिसल फनल है उसको फिल कर दिया हमने शुगर सोल्यूशन से, 20% शुगर सोल्यूशन से. उसका जो माउथ है उस पर हमने पूरा कवर कर दिया, सेलोफेन पेपर को टाइटली कवर करेंगे यहाँ पर ताकि लीकेज ना हो. एंड बीकर वी आर यूजिंग विच हैज़ द वाटर इन इट, डिस्टिल वाटर ले रहे हैं. नाउ one more thing we will do here, we will mark the initial level of fluid or sugar solution in the thistle funnel. तो यहाँ पर आपको clearly दिख रहा होगा कि ये initial जो level है वो mark किया हुआ है, ठीक है, लिक्विड का. लिक्विड मतलब शुगर सोल्यूशन जो थिसल फनल के अंदर है उसका इनिशियल जो है हम रीडिंग उसको कैसे लेंगे, उसको मार्क बना देंगे विद द हेल्प ऑफ मार्कर. नाउ लीव दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप अनडिस्टर्ब फॉर 15 to 20 minutes. उसको विल लीव इट एज इट इज़ एंड देयर आफ्टर वी विल ऑब्जर्व द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन द ट्यूब ऑफ द फनल. अब उसके बाद जो इसका जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर, फनल के ट्यूब के अंदर हम इसके लेवल को ऑब्जर्व करेंगे. सो व्हाट शैल वी सी देयर, यू विल फाइंड दैट द लेवल ऑफ द सोल्यूशन इन द ट्यूब हैज़ बीन रेज्ड. तो जो हमने यहाँ पर देखा था कि ये इनिशियल लेवल था, यहाँ से इसका लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया. ओके, और यहाँ पर लेवल राइज हो रहा है. सो व्हाट इज़ द रीज़न, वाई डज इट हैपन कि यहाँ पर थिसल फनल के अंदर जो इनिशियल लेवल था उससे लेवल राइज हुआ है. व्हाट इज़ द रीज़न स्टूडेंट्स हियर? सो यू नो दैट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हैज़ टेकन प्लेस थ्रू द सेलोफेन पेपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड कैसे हुआ ये? सो यू नो चिल्ड्रन कि जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वाटर का, इट इज़ हायर इन द बीकर बिकॉज बीकर के अंदर वाटर ही है, डिस्टिल वाटर है. ओके, सो जो अमाउंट ऑफ वाटर है इन द बीकर इज मोर देन
the sugar solution in the thistle funnel. Sugar solution 20% है, definitely concentrated solution है, तो यहाँ पर water कम होगा. तो now, so what will happen? Water will move from beaker to thistle funnel through the cellophane paper, which is working here as a semi permeable membrane, and the process by which it is taking place, this is sorry, osmosis. So osmosis के through water beaker से thistle funnel के अंदर enter कर रहा है, but through the semi permeable membrane from its region of higher concentration to the region of its lower concentration, and this is the process of osmosis. So understood, children? This is the demonstration of osmosis. Fine. So you remember all the that things which are required for osmosis. Here the thistle funnel, beaker, water, concentrated solution, how to set up it, this everything I explained you. So questions based on the experiment are asked in the exam. Okay, the reason for rising the level, why we use sugar solution in the thistle funnel. Okay, that also can be asked. So it can be done in the reverse manner too, कि thistle funnel में हम water को fill करें और बाहर हम sugar solution को. So what will be the change? So some kind of interactive this questions can be asked from the this process. Okay, so this is all about the osmosis. Fine, study it well and solve the exercises based on this experiment. Okay. Now demonstration of osmosis can be done with the help of potato also. So we are preparing here potato osmoscope. How it is done? This you can do at home also. Very simple experiment is there. Here we are taking a potato, peeling it, है ना, इसको peel out करेंगे और peel करके क्या करेंगे, we will made a cavity. ओके, वी विल मेड अ कैविटी, इसके अंदर एक कैविटी जो है वो हम क्रिएट करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल फिल द कैविटी ऑफ द पटेटो विद द शुगर सोल्यूशन. ओके, तो हमने पटेटो लिया, पटेटो के अंदर क्या किया, पील आउट करके और उसके अंदर से जो है हमने टिश्यू रिमूव कर दिया. तो यहाँ पर क्या हो गया, कैविटी जो है वो क्रिएट हो गई. ठीक है, अब इस कैविटी के अंदर हम क्या फिल करेंगे, कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन. यू कैन सी हियर कि जो पटेटो की कैविटी है उसके अंदर है कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन. Now we will place this potato in the beaker containing distilled water in it. So beaker contains water and the potato contains sugar solution inside it. And one more thing we will do it with the help of Alpin. We will mark the initial level. यहाँ पर हम क्या करेंगे, initial level को mark कर देंगे Alpin की मदद से. And then now again we will leave this setup for 15 to 20 minutes. Now what shall you observe कि जो हमने initial जो mark किया था, okay, जो pin हमने लगाया था, that level of this solution which is present inside that potato cavity, it increases. Why does it happen? Here also the same reason, that externally that water concentration is there, fine, and water concentration is more than the inner side. तो अंदर की तरफ जो है पोटैटो के अंदर concentrated sugar solution है, और externally क्या है, externally है more water content is there. So water will move from its region of higher concentration to the region of lower concentration. Okay, this is due to the osmosis. So by this we can show the process of osmosis with the help of potato osmoscope, and this can be done by you at home also in a easy process. So this is very easy process, and try to perform it at your home also. Now children, we will see the tonicity and osmosis. So here we will see that what is tonicity, and on the basis of tonicity there are three types of solution which we will study further. These three types of solution are hypertonic, hypotonic and isotonic. On the basis of this solutions, we are going to study the two types of osmosis, that is exosmosis and the endosmosis there. Okay, so we will see here
that what is tonicity. As I said you, that tonicity and osmosis. Okay, so tonicity is, just a minute, yeah, so we were here. Tonicity means the relative concentration of the solute in two solutions separated by semi permeable membrane. मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशंस की जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको हम रिलेट कर रहे हैं. मीन्स सपोज हियर सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 वी आर कीपिंग. ओके, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2. अब इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट विल मेक द डिफरेंस. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट विल मेक द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. तो अगर यहाँ पर सोल्यूट की सपोज सोल्यूशन 1 है, इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स इट विल बी द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. एंड इफ़ आई कंसिडर हियर दैट सोल्यूशन 2, इट मीन्स यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की, सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर कम है तो यहाँ पर ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा. Are you understanding? In the simple way I am comparing. So tonicity is the relative concentration of the solute in two solutions separated by semi-permeable membrane, and it decides the direction of the movement of water. तो अब ये डिसाइड करेगा कि मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल का किस डायरेक्शन में होगा. As I said you कि जो फर्स्ट सोल्यूशन है इसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है. अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है बिकॉज सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, गुड. या आई वांट टू सी योर रिस्पॉन्स. तो सोल्यूशन नंबर 1 हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, कंसंट्रेटेड है. सोल्यूशन नंबर 2 हम कह रहे हैं कि डाइल्यूट है. इसका मतलब इसमें जो वाटर है वो ज़्यादा है. ठीक है, अब इन दोनों सोल्यूशन को हम सेपरेट कर दें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से और ऐड करें तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूशन 1 से सोल्यूशन 2 की तरफ मूव करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूशन 1 में कंसंट्रेशन कम है. तो ऐसे जब हम रिलेटिव कंसंट्रेशन को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, देन दिस इज टर्म्ड एज द टोनिसिटी. ओके, सो टोनिसिटी इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन solute in two solutions separated by the semi permeable membrane, and it decides the direction of the movement of water. So on the basis of tonicity there are three types of solution: hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution. Hyper means you should understand, hyper का मतलब होता है more. ओके, टोनिक अगेन हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स अ सोल्यूशन विच इज हैविंग हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन. ओके, तो हाइपर का मैंने मतलब क्या समझाया, हाई. तो यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी. जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी सेल्सियस से, तो यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा. और ऐसा सोल्यूशन जो है वो सेल को श्रिंक करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन किससे ज़्यादा है, सेल से. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और जो लिक्विड है उससे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो सेल क्या करेगी, वाटर को जो है लूज़ करेगी और श्रिंक हो जाएगी. हाउ, आई विल शो यू फर्दर इन द डायग्राम ऑल्सो. नेक्स्ट, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपो का मतलब हुआ लो, बिलो. तो यहाँ पर सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी एज कंपेयर टू सेलसेप. सेलसेप यू नो द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द सेल. सो यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब हो गया इट हैज़ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सेलसेप. तो यहाँ पर क्या होगा, सेल एक्चुअली विल शो एंड ऑस्मोसिस, सेल विल स्वेल अप. स्वेलिंग क्यों होगी, क्योंकि जो वाटर है वो सराउंडिंग सोल्यूशन से सेल के अंदर एंटर करेगा. सो सेल विल स्वेल अप. ओके, दिस इज नोन एज द एंड ऑस्मोसिस ऑल्सो. एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा, आइसो मीन्स इक्वल यहाँ पर. सो जो सोल्यूशन है यहाँ पर विद इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन एज द सेलसेप. सेल जिसके अंदर हम रख रहे हैं सोल्यूशन में, उसका कंसंट्रेशन और सेलसेप का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है. जब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल है तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज. ओके, सो नो चेंज विल बी देयर इन द वॉल्यूम बिकॉज ऑफ osmosis here. So these are that different type of that solutions and the types of osmosis also. Now I will explain you here that कि changes क्या क्या होते हैं. देखो,
ओके, एज आई सेड यू कि जब हम सेल को रख रहे हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर, सो यू विल सी कि ये यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और दिस इज सेल। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एनिमल और प्लांट सेल दोनों शो किया हुआ है। ऊपर की तरफ जो है ये आपको आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल दिखाया है, एनिमल सेल है, डाउन साइड जो है वो प्लांट सेल है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपर साइड जो है ये एनिमल सेल है। हम कोई भी एक हम प्लांट सेल को कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि प्लांट के अंदर अपने को एब्जॉर्प्शन स्टडी करना है, इसलिए तो प्लांट सेल है इस वी आर कीपिंग इट इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एज आई सेड यू कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, वाटर इज लेस in the solution then the cell sap. Are you getting it? Hypertonic solution के अंदर क्या हो रहा है, this is sorry hypotonic, I could not see it, this is hypotonic, hypertonic इधर है, so I'll come to the hypotonic again, please correct it. Hypotonic का मतलब क्या हो गया, जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है देन द सेल सेप। सो इन दैट केस व्हाट हैपन कि सॉल्यूशन से वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर एंड इट विल कॉज स्वेलिंग ऑफ द सेल, सेल स्वेल अप हो जाएगी। ओके, सेल विल बिकम टर्जिड, इसको टर्जिड भी कहते हैं, कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाएगी सेल। सो दिस इज ड्यू टू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट वी विल कम टू द हाइपरटोनिक। पहले हम इन दोनों को कंपेयर, लिसन, हम सेल को कहाँ रख रहे हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का मतलब होगा कि सॉल्यूट यहाँ पर लेस है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन इज मोर, हियर सोल्यूशन इज बीइंग डाइल्यूट देन द सोल्यूशन प्रेजेंट इन द सेल, दैट इज सेल सेप। तो सेल के बाहर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है देन द सेल सेप। तो ऐसे केस में क्या होगा, वाटर जो है सॉल्यूशन से मूव करके एंटर करेगा सेल के अंदर, सो सेल विल एब्जॉर्ब द वाटर हियर। आर यू गेटिंग इट नाउ? क्योंकि बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन में है, तो जब सेल एब्जॉर्ब करेगी यहाँ पर वाटर को, देन इट विल स्वेल अप एंड मेक्स द सेल टर्जिड। दिस सिचुएशन, दिस कंडीशन मेक्स द सेल टर्जिड। अब हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में कंसंट्रेटेड कंडीशन है। कहाँ पर, जो सॉल्यूशन है यहाँ पर जो वाटर है वो कम है। ओके, वाटर इज लेस क्योंकि कंसंट्रेटेड है देन द सेल सेप। अब सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है देन द एक्सटर्नल solution. So in this case what will happen, water will move out from the cell towards the solution. This is just opposite of this first condition which I explained you. ओके, यहाँ पर सेल लूज करेगी वाटर को, क्यों होगा, क्योंकि सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज लेस। ओके, so what cell will lose the water and it will cause shrinkage in the cell content। और ये जो प्रोसेस होगा जहाँ पर सेल से वाटर लूज हो रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये एक्स ऑस्मोसिस होता है क्योंकि सेल से वाटर बाहर की तरफ जा रहा है थ्रू ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये देखा था कि सेल इज एब्जॉर्बिंग वाटर, मीन्स वाटर फ्रॉम सराउंडिंग इज एंटरिंग इनटू द सेल, दिस इज एंड ऑस्मोसिस। अब थर्ड कंडीशन लेंगे आइसोटोनिक। ऐसा ही सेड कि आइसोटोनिक में क्या होगा, in and out of the cell the concentration of the water is equal, सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। तो यहाँ पर जो है इक्वल होने के कारण जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर है वो नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ जो है वाटर का अमाउंट सेम है, सो नेट मूवमेंट जो है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 3 सॉल्यूशंस एंड देयर इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सो ऑन दिस